بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القراءۃ الراشدہ الجزء الاول، الدرس الرابع فی السوق، الحلقۃ الثالثہ۔ اس سبق کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ آپ سنیں، عبارت سنیں، توجہ سے سنیں اور خوبصورت جملوں کو یاد کریں، خوبصورت تعبیرات کو یاد کریں اور اپنی گفتگو میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی گفتگو کرنے والا نہ ہو تو یہ سوچیں کہ یہ لفظ میں کہاں استعمال کر سکتا ہوں، اس لفظ سے میں کتنا اور کہاں کہاں فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ عمر بکم ہوا، عمر پوچھتا ہے یہ کتنے کا ہے؟ ہم کو رات دن ضرورت پڑتی ہے خرید و فروخت کی۔ اگر ہمیں کسی عربی شخص کی دکان سے کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم یہی پوچھیں گے بکم ہوا، یہ کتنے کی ہے؟ بکم ہوا، یہ کتنے کی ہے؟ صاحب الدکان بست روبیات، دکاندار کہتا ہے، صاحب الدکان دکاندار، بست روبیات، یہ 6 روپے کی ہے۔ عمر الا تنزل فی الثمن، دیکھیے یہ خوبصورت جملہ، ایک خوبصورت تعبیر، الا تنزل فی الثمن، کیا آپ قیمت کم نہیں کریں گے؟ آپ قیمت میں اتریں گے نہیں؟ کیا آپ قیمت میں اتریں گے نہیں؟ الا تنزل فی الثمن، کیا آپ قیمت میں اتریں گے نہیں یا کیا آپ قیمت کم نہیں کریں گے؟ الا تنزل فی الثمن صاحب الدکان لن تجد یا سیدی ارخص من هذا فی السوق، جناب آپ اس سے سستا بازار میں نہیں پائیں گے یا اس سے سستا آپ کو بازار میں نہیں ملے گا۔ لن تجدہ کے ترجمے پر غور کریں، 2 طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ جناب آپ اس سے سستا بازار میں نہیں پائیں گے یا جناب آپ کو اس سے سستا بازار میں نہیں ملے گا، آپ کو اس سے سستا بازار میں نہیں ملے گا۔ جب اردو میں یوں لکھا ہو، یوں تعبیر ہو تو اس کی عربی بنانے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نہیں پائیں گے، آپ نہیں پائیں گے، تب تو لن تجدہ ہم عربی آسانی سے بنا سکتے ہیں، مگر آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ ہو تو اس کی عربی بنانے میں ہم عموماً طلباء لوگ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لن تجد یا سیدی ارخص من هذا فی السوق، تو ترجمہ اچھی طرح سے سمجھیں، جناب آپ کو اس سے سستا بازار میں نہیں ملے گا یا جناب آپ اس سے سستا بازار میں نہیں پائیں گے۔ ارخص یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، رخیص سستا، ارخص کسی کے مقابلے میں سستا۔ ارخص اسم تفضیل کا ترجمہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی کے مقابلے میں سستا ہونا ہے، مطلق زیادہ سستا ہونا یہ اسم تفضیل کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ زیادہ کسی کام کا ہونا مطلقاً یہ نہیں، کسی کے مقابلے میں زیادہ ہونا یہ اسم تفضیل کا صحیح ترجمہ ہے۔ تو یہ ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سستا۔ کچھ احباب اسم تفضیل کا ترجمہ یوں کر جاتے ہیں، اس سے زیادہ سستا نہیں، زیادہ یہاں بولنا لغو ہے، بیکار ہے۔ صرف اتنا کہیں گے آپ کو اس سے سستا بازار میں نہیں ملے گا، اس سے سستا۔ اگر یہ کہنا ہے تو یہی ارخص ہی استعمال کریں گے۔ کچھ یوں بھی کہہ دیتے ہیں لن تجد یا سیدی رخیصا من ہذا، اس سے سستا نہیں، یہ ہرگز نہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اسم تفضیل کو سمجھنے میں طلباء حضرات غلطی کرتے ہیں، چونکہ نحو صرف کی کتابوں میں اس کا ترجمہ لکھا جاتا، مثلا ناصر مدد کرنے والا، انصر زیادہ مدد کرنے والا، تو اس کا ترجمہ مطلق زیادہ مدد کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ ہوتا کسی دوسرے شخص سے زیادہ مدد کرنے والا۔ تو اسی طرح ارخص ہے تو یہ بھی کسی دوسری چیز کے مقابلے میں سستی ہو، تو زیادہ لفظ لانے کی یہاں ضرورت نہیں رہتی۔
उमर उसद्दिक़ुका लिअन्नका मुस्लिमुन वल मुस्लिमु ला यकज़िबु वला यग़ुश्शु। उसद्दिक़ुका, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। सद्दक़ युसद्दिक़ु, तस्दीक करना, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ क्योंकि आप मुसलमान हैं। लिअन्नका मुस्लिमुन, क्योंकि या इसलिए कि आप मुसलमान हैं। वल मुस्लिमु ला यकज़िबु वला यग़ुश्शु, और मुसलमान न झूठ बोलता है न धोखा देता है। वल मुस्लिमु ला यकज़िबु, कज़ब यकज़िबु झूठ बोलना, गश यग़ुश्शु धोखा देना। मुसलमान न तो झूठ बोलता है और ना ही धोखा करता है। खालिद वमा हादल मकानु लज़ी यअकुलु फ़ीहि अन्नास, और ये क्या जगह है जिसमें लोग खा रहे हैं। ये कौन सी जगह है या ये क्या जगह है या ये कैसी जगह है जिसमें लोग खा रहे हैं। उमर हादा मत्अमुन यअकुलु फ़ीहि अन्नास, मत्अमुन होटल को कहते हैं, जमा इसकी मताइम आती है। ये होटल है जिसमें लोग खाना खाते हैं। वल मताइमु फ़िल बलदि कसीरतुन, जमा भी आ गई है, शहर में होटल खूब हैं। वल मताइमु फ़िल बलदि कसीरतुन, और होटल शहर में बहुत हैं। खालिद मा लिया लम अरा मत्अमन फ़िल क़रिया, क्या बात है कि मैंने गांव में कोई होटल नहीं देखा। खालिदुन मा लिया लम अरा मत्अमन फ़िल क़रियति, क्या बात है कि मैंने गांव में कोई होटल नहीं देखा। होटल उर्दू में मुज़क्कर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ मारवाड़ी की मुनासबत से आम तौर से लोग मुअन्नस इस्तेमाल कर देते हैं। होटल नहीं देखी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, इस तरह उर्दू में भी कह देते हैं, जो कि गलत है। होटल उर्दू में लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, तो मुज़क्कर ही इस्तेमाल किया कीजिए। यूँ कहेंगे मा लिया लम अरा मत्अमन फ़िल क़रिया, क्या बात है कि मैंने गांव में कोई होटल नहीं देखा। उमर लिअन्नल बलद फ़ीहि ग़ुरबाउ व मुसाफ़िरून लैस लहुम बुयूतुन युक़ीमून फ़ीहा व यअकुलून फ़ीहा। ये ग़ुरबा गरीब की जमा है, पीछे भी आ चुका है। परदेसी को कहते हैं, अजनबी को कहते हैं, न कि फ़कीर मुहताज को, क्योंकि शहर में अजनबी और मुसाफिर होते हैं या परदेसी और मुसाफिर होते हैं। लैसा लहुम बुयूतुन, जिनके घर नहीं होते जहाँ वो ठहरें और जहाँ वो खाएं। लैसा लहुम बुयूतुन युक़ीमून फ़ीहा व यअकुलून फ़ीहा, उनके घर नहीं होते जहाँ वो ठहरें और जहाँ वो खाएं। ग़ुरबाउ व मुसाफ़िरून, ये दोनों नकीरा हैं, इसलिए दोनों ही मौसूफ़ हैं। लैसा लहुम बुयूतुन, अगला जुमला इसकी सिफ़त है। फिर बुयूतुन ये नकीरा है और नकीरे के बाद युक़ीमूना और यअकुलून आए हैं, ये दोनों उसकी सिफ़तें। नकीरे के बाद जब भी कोई जुमला आता है तो वो जुमला नकीरे की सिफ़त वाक़ हुआ करता है। लिअन्नल बलद फ़ीहि ग़ुरबाउ व मुसाफ़िरून, क्योंकि शहर में परदेसी और मुसाफिर होते हैं जिनके घर नहीं होते जहाँ वो ठहरें और जहाँ वो खाएं। फ़यअकुलून फ़िल मताइमी, इसलिए होटलों में खाते हैं। फ़यअकुलून फ़िल मताइमी, इसलिए वो होटलों में खाते हैं। अम्मल क़रियतु फ़ल ग़रीबु फ़ीहा क़लीलुन, रही बात गाँव की, अम्मल क़रियतु रहा गाँव, तो वहाँ मुसाफिर अजनबी लोग कम होते हैं। फ़ल ग़रीबु फ़ीहा क़लीलुन, परदेसी लोग वहाँ कम होते हैं। फ़ला हाजत फ़िल क़रियति इलल मत्अमी, लिहाजा गाँव में होटल की कोई ज़रूरत नहीं होती। फ़ा का तर्जमा लिहाजा गाँव में होटल की कोई ज़रूरत नहीं होती। फ़ला हाजत फ़िल क़रियति इलल मत्अमी, लिहाजा गाँव में होटल की कोई ज़रूरत नहीं होती। ला हाजत का माना कोई ज़रूरत नहीं। ये ला और ला के बाद में नकीरा हो, उस नकीरे पर एक ज़बर हो तो तर्जमा हुआ करता है कोई ज़रूरत नहीं। ला रजुला, कोई आदमी नहीं। ला तालिबा, कोई तालिब इल्म नहीं। खालिद व अयन नजिदुल वरक़ वल हिब्र वल क़लम वल मिरसम वन नश्शाफ़त व अदवातिल किताबा, और हम कागज़, यहाँ भी दो तर्जमा करेंगे देखिए, और हम कागज़, रोशनाई, कलम, पेंसिल, रोशनाई साफ़ करने वाला, और
लिखाई का सामान कहाँ पाएंगे, हम कहाँ पाएंगे, एक तो ये। दूसरा, और हमको कागज़, रोशनाई, कलम, पेंसिल, रोशनाई साफ़ करने वाला। नशाफ़तुन का माना रोशनाई साफ़ करने वाला। पुराने ज़माने में जब लिखते थे रोशनाई के कलम से, दवात में कलम डुबो करके लिखते थे, तो रोशनाई बसा औक़ात कागज़ पर ज़्यादा आ जाया करती थी। उसको साफ़ करने के लिए रुई से बना हुआ या ऐसी ही किसी चीज़ से बना हुआ होता था, जिसको रोशनाई साफ़ करने वाला नशाफ़तुन कहते थे। नशाफ़तुन यानी रोशनाई को चूसने वाला। नशफ़ यनशफ़ु का माना है चूसना। व नशाफ़त, तौलिए को भी मिनशफ़तुन कहते हैं, क्योंकि वो भी बदन के पानी को चूसता है। व नशाफ़ता व अदवात, और हमें कागज़, रोशनाई, कलम, पेंसिल, रोशनाई साफ़ करने वाला और लिखाई का सामान कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, हमें कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पाएंगे। अदवात, अदातुन की जमा है अदवात, अदातुन वाहिद और जमा अदवात। इसके माना आला और औज़ार हैं। आला और औज़ार, अदवातु ज़िराआ, काश्तकारी के जो आलात और औज़ार होते हैं उनको अदवातु ज़िराआ कहते हैं। अदवातुल मदरसा, मदरसे का जो सामान होता है, कलम है, कापी है, किताब है और पेंसिल है, दवात है, ये सब के सब अदवातुल मदरसा में आते हैं। अदवातुल किताबा, लिखने का सामान, यही कलम, कागज़, पेंसिल, रबर वग़ैरह वग़ैरह, ये सब अदवातुल किताबा कहलाते हैं, लिखने के आले, लिखाई के आले, औज़ार। उमर, हादा दुकान वर्राक़िन तजिदु फ़ीही जमीअ हवाइजिल मदरसा। उमर कहता है ये किताब वाले की या कागज़ वाले की दुकान है। वर्राक़ का माना कागज़ वाला, कागज़ बेचने वाला। ये कागज़ बेचने वाले की दुकान है, ये स्टेशनरी की दुकान है। आजकल की ज़बान में यूँ भी कह सकते हैं, आपको इसमें मदरसे की तमाम ज़रूरियात मिल जाएंगी। तजीदु फ़ीही जमीअ हवाइजिल मदरसती, आपको इसमें मदरसे की तमाम ज़रूरियात मिल जाएंगी। खालिद, अशकुरुका या सदीक़ी अल करीम फ़क़द अफ़दतनी कसीरा। खालिद कहता मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़क़द अफ़दतनी कसीरा, आपने मुझे खूब फ़ायदा पहुँचाया। अफ़ादा युफ़ीदु इफ़ादतन, खूब फ़ायदा पहुँचाना। फ़क़द अफ़दतनी कसीरन, आपने मुझे खूब फ़ायदा पहुँचाया है, आपने मुझे खूब नफ़ा पहुँचाया है। व अरा अन नरजिअल आना इलल बैति व नुसल्ली अल मग़रिब हुना, और अब मैं समझता हूँ कि हमें घर लौट जाना चाहिए, या मैं समझता हूँ कि अब हम घर लौट जाएं। अरा अन नरजिअ, देखिए खूबसूरत ताबीर है। अरा अन नरजिअ, मैं समझता हूँ कि अब हम लौट चलें, अब हम घर लौट चलें और मग़रिब की नमाज़ वहीं पढ़ेंगे। व नुसल्ली अल मग़रिब हुना, और मग़रिब की नमाज़ वहीं पढ़ेंगे। उमर, नअम वमा बक़िया ली शुग़लुन, उमर कहता हाँ, और मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा। वमा बक़िया ली शुग़लुन, और मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा। मा बक़िया, बक़िया यबक़ा, बाब समिया यस्मऊ से आता है, इसको आप अच्छी तरह से याद करें। मुजर्रद के जितने भी अफ़आल आते हैं इन्हें आप खूब याद करें। बक़िया यबक़ा मसलन इस बाब से आता है समिया यस्मऊ से, इसको हम पढ़ जाते हैं बक़ा यबक़ी या बक़ा यबक़ा, या कुछ भी पढ़ जाते हैं दूसरा जहाँ एराब नहीं लगा हुआ होता है तो बक़िया को बक़ा पढ़ जाते हैं। इसी तरीके से मशा यमशी, रमा यरमी, और भी खशिया यग़शा है। इस किस्म के ये जो हैं अबवाब, इन्हें ख़ास तौर से याद करना चाहिए कि ये कौन से बाब से इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल ये तर्जमा मुकम्मल हुआ है। इसमें जितने अल्फाज आए हैं, अल्फाज उन्हें आप खूब याद करें। अस्इला आगे आए हैं, आप ख़ुद हल करने की कोशिश करें, वरना अगले सबक में इंशाअल्लाह इसकी कोशिश की जाएगी। मुझे मालूम हुआ कुछ दिन पहले मेरे एक मोहतरम दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल करीम वली नदवी दामत बरकातुहुम ने बताया कि ये जो अस्इला हैं इस किताब में, ये हज़रत मौलाना आलिम नदवी अलैहिर्रहमा की तरफ से
نہیں لکھے گئے۔ حضرت مولانا نے نہیں 100 اسئلہ لکھے تھے، یہ بعد میں ابھی کسی بندے نے لگائے۔ بہرحال میں نے چونکہ یہ شروع کا مقدمہ نہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کسی نے لکھا بھی ہو۔ خیر، اسئلہ بھی آپ حل کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہوتے ہیں تو پوچھ بھی لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھپور، راجستھان۔